Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss one of the most important topic of this chapter, that is the second phase of photosynthesis. Yes, you are right, that is light independent reactions or dark reactions. So let's move to the classboard. So dear students, light independent reactions the second phase of photosynthesis. The first phase was light dependent. Now the light independent reactions, which are also called as the dark reactions. And also called as the Calvin cycle. And one more name, एक और नाम है इसका, that is C3 pathway. तो डियर स्टूडेंट्स, इन चारों में से किसी एक नाम से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है. What are light independent reactions? What are dark reactions? What is Calvin cycle? और what is C3 pathway? किसी में बेतरीके से पूछा जाता है. चारों एक ही बात. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, the dark reactions, are the phase of photosynthesis during which carbon dioxide is reduced to produce sugars. क्लियर? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है ताकि उससे शुगर्स प्रोड्यूस की जा सकें. अब डियर स्टूडेंट्स, these reactions, the dark reactions, occur in the absence of light or even or during dark. यानी कि ये अंधेरे में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है, if the assimilatory power of ATP and NADPH, which are produced during light reactions, is available. मतलब ये दिन को भी होते हैं, रात को भी, लेकिन इंडिपेंडेंट है. जरूरत नहीं है, रात के वक्त भी हो सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में कि अगर एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई थी वो मौजूद है. अगर नहीं है तो फिर डार्क में ये नहीं हो सकते. सो दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज
light independent reactions. Now, dear students, basically the light independent reactions which are called as the dark reactions. The dark reactions were discovered by Melvin Kelvin and his colleagues at the University of California of California they were awarded Nobel Prize for this. They were awarded Nobel Prize for their work in 1961. In 1961. क्लियर? और अब हम इसको डिफाइन भी करेंगे कि डार्क रिएक्शंस क्या हैं या केल्विन साइकिल क्या है, केल्विन साइकिल को. सो द साइक्लिक सीरीज of reactions using enzymes through which carbon dioxide is reduced to produce sugars is called Calvin cycle. क्लियर? तो ये इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, व्हाट इज कैल्विन साइकिल. तो आप इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं. और जहाँ तक अब बात करें सेलुलर लेवल पे, तो सेलुलर लेवल में कहाँ पर हो रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट. और उससे सब लेवल पे आएंगे तो ये कहाँ पर हो रहे हैं? इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लियर? सो द डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस. चैप्टर नंबर 4 में भी आपको बताया था डिटेल के साथ, और उससे पहला भी कई दफ़ा ये बात हो चुकी है डार्क रिएक्शंस की अकरेंस के हवाले से. टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा. एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लें, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लियर? ओवरऑल जो इसकी समरी है, जिसकी इक्वेशन है, वो कुछ इस तरह से होती है, जो इस पूरे डार्क रिएक्शन को समराइज करती है. दैट इज 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्लस 6 NADPH plus 9 ATP
they produce sugar CH2O whole thrice, triosis होती है basically, sugars plus 6NADP plus 9ADP plus 9 inorganic phosphates plus 3 water molecules. So that is the summary of this whole reactions. Clear? And now its phases. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं साइकिल ड्रॉ करता हूँ, उसी के जरिए इसकी तमाम फेजेस को भी हम समझ सकेंगे. क्लियर? तो बेसिकली कैल्विन साइकिल ये 3 फेजेस में होगा. और द फर्स्ट फेज इज द कार्बन फिक्सेशन, द सेकंड फेज इज reduction, and the third phase is the regeneration of carbon dioxide acceptor, that is ribulose bisphosphate. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हर वक्त एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन एक मॉलिक्यूल मौजूद है, हाई एनर्जी कंपाउंड मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज राइबोलोज बिसफॉस्फेट. सो दीज सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग द कार्बन. सो 5 कार्बन और इसके साथ अटैच्ड हैं at carbon number 1 and carbon number 5 there is attached phosphate. So this organic molecule is called ribulose bisphosphate. Or it is abbreviated as RU for ribulose, B for bis and P for phosphate, RUBP. Clear? ये वाला जो 5 कार्बन कंपाउंड है ये हर वक्त मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. और इसके 3 मॉलिक्यूल्स में से ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं, ये 5 कार्बन कंपाउंड है. इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, एज यू कैन सी 1 2 3 4 एंड 5. क्लियर? इट इज 5 कार्बन कंपाउंड और इसके 3 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होंगे. नाउ व्हाट विल हैपन, there is an enzyme by the name of Rubisco, RUBISCO, Rubisco की एब्रिविएशन मैं यहां पर लिख देता हूं. It is a protein, means an enzyme, ribulose bisphosphate ये बिस, ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, C फॉर कार्बोक्सिलेज, C and O फॉर ऑक्सीजनेज. सो ये डुअल एंजाइम है. ये कार्बोक्सिलेज के तौर पर भी एक्ट करता है, ऑक्सीजनेज के तौर पर भी एक्ट करता है. लेकिन यहाँ पर डार्क रिएक्शन में इट विल एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज, बिकॉज जब ये कार्बोक्सिलेज के तौर पर एक्ट करता है तो तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाता है. और जब ये ऑक्सीजनेज के तौर पर एक्ट करे तो तब ये ऑक्सीजन की फिक्सिंग करवाता है. ये वाला प्रोसेस हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 के स्टार्ट में, रेस्पिरेशन के अंदर. वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस इन फोटो रेस्पिरेशन. वहाँ पर ये ऑक्सीजनेज के तौर पर इस्तेमाल होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन में ये रुबिस्को जो है इट इज़ यूज्ड एज कार्बोक्सिलेज. ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, एज अ कार्बोक्सिलेज ये यूज होगा. चूँकि ये एंजाइम है, कहाँ पर मौजूद है? स्ट्रोमा के अंदर. दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? यानी कि अगर हम बाय हेड काउंट करें तो प्रोड्यूसर्स हैं.
तो प्रोड्यूसर्स हैं, तो मतलब कि प्रोड्यूसर्स कौन है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एल्ची। सो प्लांट्स की तादाद बहुत ज़्यादा, तो उन प्लांट्स में सबके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, सबके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो मतलब सबके अंदर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो डार्क रिएक्शन भी हो रहा है, मतलब कि उनके अंदर रूबिस्को भी है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट रूबिस्को, इट इज़ द मोस्ट abundant protein, क्योंकि एंजाइम है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, एंड ऑन अर्थ, इस दुनिया में भी। ये हम इसी को इसके लिए मार कर रहे हैं, ठीक है। तो चले आइए आगे मूव करते हैं। नाउ द 3 molecules of carbon dioxide. So here is carbon dioxide, CO2, it is CO2, क्लियर। ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके 3 मॉलिक्यूल इसी के और 3 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज बिसफॉस्फेट के, इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, इसको फिक्स किया जाएगा इनटू अ 6 कार्बन कंपाउंड। बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे ही बनता है, यहां पर देखिएगा, मैं एग्जांपल के तौर पर फिर उसके बाद साइकिल को पूरा करूंगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये जरा गौर से देखिएगा। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन आ गई राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और इसके साथ अटैच हुआ एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने बनेंगे? 6। तो ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3, मतलब 1 2, ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए और ये तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां तक तो है जी RUB, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और ये वाला मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। तो एक एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गई, उसका कार्बन ऐड हो गया, तो अब ये कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। ये वक्ती तौर पर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। जैसे ही बनता है ये टूट जाता है, यहां से देखिए स्प्लिट कर गया। तो जब अगर एक 6 कार्बन कंपाउंड टूटेगा तो उससे कितने, ये क्या बन रहे हैं? 3 कार्बन के 2, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने थे? 3 इसके 3 इसके, ठीक है। तो 3 6 कार्बन वाले बन गए। जब 3 6 कार्बन वाले बनेंगे, एक 6 कार्बन वाले टूटने से 2 3 कार्बन वाले बन रहे हैं, तो 3 टूटेंगे तो क्या बनेगा? 3 2s are 6, यानी 3 कार्बन के, यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 कार्बन के कितने बनेंगे? 6। So it will form 1 2 3 phosphate. This compound is called, क्योंकि कार्बन नंबर 3 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, इसे कहते हैं 3 phosphoglycerate, क्लियर। 3 phosphoglycerate और 3PG इन एब्रिवेटेड फॉर्म। और इसके अब कितने मॉलिक्यूल बन गए? जी डियर स्टूडेंट्स, कितने बने? यहाँ पर देखें, एक टूटा था तो 2 बने थे, 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, 3 कार्बन के टोटल कितने बन गए? 6। सो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे इस 3 कार्बन कंपाउंड के, जिससे हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्लियर, या ग्लिसरिक एसिड। इसको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं, PGA। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां पर इस्तेमाल होगी over here there are used 6 ATPs, 6 ATP इस्तेमाल होंगे, and these are converted into 6 ADPs, और इनमें से निकला क्या? 6 फॉस्फेट। उन 6 फॉस्फेट को इन 6 मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच कर दिया जाएगा। सो नाउ इट विल बिकम 1 2 3, तो पहले कहां पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है? कार्बन नंबर 3 पे। अब एक एक फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल्स पर अटैच होगा, तो कहां पर? एट कार्बन नंबर 1। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा?
जी डियर स्टूडेंट्स, 1,3,1,3, चूंकि 2 फॉस्फेट हैं तो बिस फॉस्फोग्लिसरेट, यानी मेन कंपाउंड वही रहा फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन पहले यहां पर तीसरी कार्बन था इसलिए इसका नाम रखा गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब पहली पे भी और तीसरी पे भी है तो 1,3, 2 हो गए तो बिस मीन्स 2, बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर? सो दिस इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन आपके सामने, 3 कार्बन, and again this is also 3 carbon compound. Is that clear? अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर होनी है रिडक्शन, और वो किस तरह से यहां पर इस्तेमाल होंगे NADPH। ये ATP कहां से आई है? जो लाइट रिएक्शन में बनी थी, यहां पर NADPH इस्तेमाल होंगे। कितने? 6। इनको यहां से ये खुद तो होंगे ऑक्सीडाइज क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 6NADP। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, और जो यहां पर पहली कार्बन पे 6 मॉलिक्यूल्स, यहां पर मैं लगाना भूल गया 6 × 6, तो 6 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट पे, ये कार्बन नंबर 1 पे 6 लगे हुए हैं फॉस्फेट, ये यहां से उतर जाएंगे। ये यहां से उतरे 6 फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उतर के, अब ये जगह खाली होगी, इसको पूरा करने के लिए यहां पर क्या अटैच होगा, ये NADPH क्या करेगा, ये इट विल डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कहां पर जाकर अटैच होगा, यहां पर अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन। द रिजल्टिंग कंपाउंड नाउ इज कॉल्ड, तो चूंकि 6 फॉस्फेट यहां से उतर गए, एक ही फॉस्फेट रह गया कहां पर, तीसरे कार्बन पे, तो जब यहां पर हुई रिडक्शन तो ये अब कहलाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्लियर? क्योंकि तीसरी कार्बन पे मौजूद है इसकी फॉस्फेट ग्रुप, या इसको सिंपल फॉर्म में हम कहते हैं, यहां पर लिख देता हूं इसकी एब्रिविएशन G3P। क्लियर? तो यहां पर रिडक्शन हो चुकी। अब डियर स्टूडेंट्स ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 थे तो 6 ही आगे आ रहे, 6 मॉलिक्यूल्स। अब इन 6 में से एक यहां से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल G3P का यहां से निकलेगा, वन G3P, तो एक G3P निकला। अब ये G3P यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये शुगर है। अब ये शुगर आगे पहले से मौजूद 3-3 कार्बन वाली G3P के साथ मिलकर या तो बनवा देगी ग्लूकोज, या फिर सुक्रोज, या फिर कोई और अदर कंपाउंड्स, कोई और कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, शुगर्स के अलावा भी बन सकते हैं। ठीक है? अब 6 में से एक निकल गया तो बाकी कितने रह गए? 5। सो अब वो 5 जो हैं, वो डियर स्टूडेंट्स वो अ सीरीज ऑफ रिएक्शन से गुजरेंगे, and they will be converted back into the 5 carbon compound। यहां पर मजीद अब दोबारा से 3 ATP और इस्तेमाल होंगे, और कन्वर्ट होंगे 3 ADP के अंदर, और उनसे निकलने वाले, चूंकि इसके पास सिंगल फॉस्फेट है, एक एक फॉस्फेट और ऐड करनी है क्योंकि ये बिस फॉस्फेट है। अब
ये सारा कहलाएगा रीजनरेशन वाला प्रोसेस। अब जरा थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं इस स्टेप को, अब जरा समझिए प्लीज इसको। तो 3 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल हमारे पास? जी डियर स्टूडेंट्स, कितने हैं? ये G3P कितने हमारे पास? यहां से निकल गया तो कितने रह गए बाकी? 5। अब ये 5 हमारे पास मौजूद है। मैं यहां पर इसको मेंशन भी कर देता हूं, चलिए ऐसे इजी हो जाएगा थोड़ा सा। दिस इज G3P, 3 कार्बन शुगर, कितने मॉलिक्यूल्स? 5, और एक एक फॉस्फेट है सबके साथ, क्लियर? क्योंकि एक तो यहां से निकल गया, बाकी 5 रह गए, वो यहां पे। अब 5 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन के, ये रीअरेंज होंगे। सो 5 3 कितना होता है? 15। 5 3 15। अगर इसको ये अपने आप को रीअरेंज इस तरह से करेंगे, ये 3 कार्बन के 5 कंपाउंड्स हैं। अब ये 5 कार्बन के कितने रह जाएंगे? 3। ये बात समझ आई? 3 5 15, नंबर ऑफ कार्बन उतना ही रहा। 5 3 15 एंड 3 5 15। तो ये एक्चुअली हमें चाहिए था 5 कार्बन वाला, तो ये रीजनरेट हो गया। क्लियर? तो अगर ये बात ना समझ आए तो उसको दोबारा से रिवाइंड करके देखिएगा। 3 कार्बन वाले कितने कंपाउंड्स हैं? 5, क्योंकि टोटल कितने? 6। एक निकल गया जो शुगर बनाने के लिए, एक अलग प्रोसेस से वो शुगर बनेगी। इस प्रोसेस से ग्लूकोज नहीं बनती। इस प्रोसेस से याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, G3P बनती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये आपको याद है मोनोसैकेराइड ट्रायोसिस में पढ़ाया था, मैंने बताया था वहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड आपको पढ़ाया था। सो वो शुगर है, सो इट्स अ शुगर। तो यहाँ पर इसके बाकी 6 में से एक निकल गया तो बाकी 5 रह गए। ये 5 3 कार्बन वाले हैं, ये रीअरेंज होके 3 5 कार्बन वाले बन गए। 3 5 कार्बन वाले बन गए, इनके साथ एक एक फॉस्फेट लगा हुआ। तो 5 कार्बन वाले 3 जो बन गए, इनका नाम है राइबुलोज। क्योंकि एक फॉस्फेट है तो क्या कहलाएगा? राइबुलोज फॉस्फेट, RUP, राइबुलोज फॉस्फेट। तो हमें कौन सा वापस रीजनरेटेड फॉर्म में कौन सा चाहिए? राइबुलोज बिस फॉस्फेट। तो मॉलिक्यूल इसके कितने बने हैं? 3। तो एक एक फॉस्फेट और चाहिए। कितने फॉस्फेट चाहिए? 3। तो इस वजह से 3 ATP टूटेंगे और उनका एक एक फॉस्फेट निकलेगा और वो आकर यहां पर अटैच हो जाएंगे और हेयर। अब दोबारा से ये क्या बन गया? राइबुलोज बिस फॉस्फेट, क्योंकि एक और फॉस्फेट ऐड हो गया। तो ये सारी सीरीज हो रही है। सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, वो 3 फेजेस किस तरह से हम डिवाइड करते हैं उस पे आ जाए। तो यहां से और यहां तक, दिस इज कार्बन फिक्सेशन, ये फर्स्ट फेज है। ठीक है, यहां पर है दिस इज कार्बन फिक्सेशन। अब ये कार्बन फिक्सेशन क्यों है? गौर से सुने। यहां पर ये 3 मॉलिक्यूल इसके और 3 कार्बन डाइऑक्साइड आई थी। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन है, ये किसका हिस्सा है? इस कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन इससे जो पहला कंपाउंड बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज अनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो कार्बन इस कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा थी, अब वो एक प्रोसेस के जरिए किस में आ गई? 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, तो फिक्स हो गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकलकर 3-फॉस्फोग्लिसरेट में फिक्स हो गई। इसलिए ये पहला स्टेप है, इसे कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। तो कैसे मुमकिन हुआ? इसकी और इसकी मौजूदगी में। उसके बाद अच्छा, चूंकि इसमें पहला कंपाउंड बनता है 3 कार्बन वाला, चूंकि इस फेज में पहला जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन सा बना? 3 कार्बन वाला, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो इस वजह से इस साइकिल को कहते हैं C3 पाथवे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मार्क कर लें। व्हाई Calvin cycle is called C3 pathway? The reason is the first stable compound formed after carbon fixation is 3 carbon compound, namely 3-phosphoglycerate. So that is why it is called as 3C3 pathway, कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है। अब जो यहां पर
6 ATP इस्तेमाल, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल 6 ATP इस्तेमाल हुए, एक एक और फॉस्फेट ऐड हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये NADPH क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। क्या डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। कितने? अ पेयर, हर एक को एक एक पेयर दे रहा है। तो चूंकि 6 मॉलिक्यूल है तो इस वजह से 6 NADPH इस्तेमाल होंगे। तो अब वो बात समझ आई लाइट रिएक्शन, जो उससे पहले हमने पढ़ी थी लाइट रिएक्शंस में, कि वो दो इलेक्ट्रॉन्स हम क्यों शो कर रहे हैं, हालांकि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो मैंने उस वक्त भी बताया था ये दो इसलिए क्योंकि एक तो NADPH को बनाने के लिए, ठीक है, रिडक्टेज कैसे काम करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसमें जो है वो ऐड करता है, तब ये NADPH बनता है। और यहां पर भी देखें, जो 2 इसने लिए थे वो यहां पर इसने वापस कर दिए, डोनेट कर दिए। तो तब क्या हुआ कि यहां से फॉस्फेट निकलेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आकर यहां पर लगेंगे, हाइड्रोजन लगेगा, तो क्या होगा? यहां से 6 फॉस्फेट निकल गए और 6 NADPH जो है वो किसमें कन्वर्ट हुए? NADP के अंदर कन्वर्ट हुए। तो अब ये फॉस्फेट भी निकल गया, तो ये क्या हो रहा है कि बाकी G3P, ये शुगर है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो कितने मॉलिक्यूल? 6। एक निकल गया यहां से, इस साइकिल से निकल गया, और उसने क्या बनवा दिया? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, व्हाटएवर, या और कोई कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना फेज जो है यहां पर क्या हुई? रिडक्शन। सो दिस इज द सेकंड फेज, दिस इज द रिडक्शन फेज, क्योंकि NADPH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और वो ऐड किए के इसके अंदर। तो क्या बनकर? G3P। और अब G3P के 6 जो बने थे, एक निकल गया, तो बाकी कितने रह गए? 5। ये 5 ने इस्तेमाल हुए थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, ये गुजरे, तो किस में कन्वर्ट होके वापस रीजनरेशन की, राइबोलोज बिसफॉल, द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो ये वाला जो फेज है, इसमें इतना हिस्सा कार्बन फिक्सेशन, इतना हिस्सा रिडक्शन, और ये वाला हिस्सा थर्ड, दैट इज रीजनरेशन। किसकी रीजनरेशन? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, वो कौन है? दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये थर्ड स्टेप, तो जो रीजनरेशन हो गई। सो दैट्स इट। सो होपफुली ये आपको क्लैरिफाई हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। सो यहां पर मुकम्मल होती है फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।